All students of class 10th are being welcomed and good morning to all everybody in online classes run by TSS 87RD Kaliganj Bilori. Now I, Raman Prasad Rai, would like to teach you physics class 10th chapter 1st electricity. From electricity, electric current is going to be started. When two charged bodies at different electric potential are connected by a metal wire, the electric charge will flow from the body at higher potential to one at lower potential. This flow of charges in the metal wire constitutes an electric current. अब जैसे देख लीजिए, कोई भी दो आवेशित वस्तु है जो अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है. मान लीजिए ए कोई चार्ज वस्तु है और बी कोई दूसरा चार्ज वस्तु है जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है और दूसरा पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है. तो इस तरह से ये दोनों वायर के द्वारा जुड़ा हुआ है और कनेक्टेड बाय मेटल वायर. देन इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द वन एट लोअर पोटेंशियल. अब इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वह एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर जाता है, लेकिन हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्ज का जो भाव होता है वह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है. यानी चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर. That is electric current. This flow of charges in the metal wires constitutes an electric current. तो ये आवेश का जो प्रभाव है मेटल में, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. It is the potential difference between the ends of the wire which makes the electric charges to flow in the wire. ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, यानी VA इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज हायर एंड VB इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज लोअर पोटेंशियल डिफरेंस. द इलेक्ट्रिक चार्जेस starts to flow from VA to VB. The electric current is the flow of electric charges in a conductor such as metal wire. इस तरह से हम देखते हैं कि आवेश का प्रभाव जो है, आवेश के जो सतत प्रवाह हैं, द कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट. If a charge of q coulombs flows through a conductor in time t seconds, then the magnitude of the electric current flowing through it is given I is equal to q by t. अगर मान लिया जाए कि q कूलम आवेश t समय तक बहता है, तो इकाई समय में बहने वाली जो आवेश है, इकाई समय में जो बहने वाली आवेश का जो मान है उसे हम धारा कहते हैं, करंट. तो व्हाट इज मीन्ड बाय करंट? द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट. सो हियर इज इंडिकेटेड I is equal to q by t. q indicates q charges and t indicates time. The SI unit of electric current is ampere. अब हम जानते हैं कि धारा इलेक्ट्रिक करंट को जो मापने की इकाई है वह एम्पियर है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं. If we put charges q बराबर 1 coulomb and time is equal to 1 second in the above formula, the current I becomes 1 ampere. अगर हम आवेश
को 1 इकाई मान लें और t को हम 1 इकाई मान लें, तो इकाई समय में बहने वाली एकांक आवेश का जो मान होगा वह धारा के बराबर हो जाता है, यानी उस धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर हो जाता है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा डिफिनेशन यही हुआ। दिस गिव्स अस द फॉलोइंग डिफिनेशन ऑफ एम्पियर। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere. इसका मतलब ये हुआ किसी भी चालक में इकाई समय तक 1 कूलम आवेश का धारा अगर प्रभावित होता है तो उस धारा का मान उस चालक में 1 एम्पियर कहलाता है। 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second. 1 A is equal to 1 C by 1 second. Sometimes, however, a small unit of current called milliampere is also used, which is denoted by MA, small letter MA. 1 milliampere is equal to 1 by 1000 ampere. 1 MA is equal to 1 by 1000 A. 1 MA is equal to 10 to the power minus 3 A. Now, thus, the small quantities of current are expressed in the unit of milliampere. MA, 1 MA is equal to 10 to the power minus 3 ampere. The very small quantities of current are expressed in a still smaller unit of current called a microampere. Current is measured by an instrument called ammeter. तो अब करंट को मापने वाली जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर, और एमीटर के माध्यम से ही हम धारा का माप करते हैं। The ammeter is always connected in series with the circuit in which the current is to be measured. तो आमीटर को जब भी हम जोड़ते हैं धारा से या सीरीज में जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वी वांट टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर BC, then we should connect the ammeter A in series with the conductor BC as shown figure 7. Since the entire current passes through the ammeter, therefore an ammeter should have very low resistance, so it may not change the value of the current flowing in the current circuit. Let us solve one problem now. इस तरह से हम देखते हैं कि आमीटर को जब भी जोड़ा जाता है धारा कंडक्टर के साथ, तो वह सीरीज में जोड़ा जाता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए सैंपल प्रॉब्लम है, एक सवाल है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब देखिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 0.25 एम्पियर का धारा प्रभावित करती है मात्र 20 मिनट में, तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज का मान आपको बताना है। आप जान रहे हैं I बराबर Q/T होता है, तो I का मान आपका दिया हुआ है, टाइम भी आपका दिया हुआ है, तो टाइम को आप सेकंड में बदल लीजिए। सेकंड में बदलने के लिए आप जानवे करते हैं 20 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1200 सेकंड हो गया। और Q आपका दिया हुआ है ही, Q का मान आपको निकालना है, I का मान आपका एम्पियर में दिया हुआ है, तो फार्मूला का आधार पर आप निकाल सकते हैं। Q का मान 300 कूलम निकल जाएगा। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज 300 कूलम। इस तरह से परिपथ में बहने वाली जो आवेश का मान है वह 300 कूलम है। अब हमको ये देखना है, how to get a continuous flow of electric current. How to get a continuous flow of electric current. अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का जो सतत प्रवाह है
विद्युत धारा का जो सतत प्रभाव कहिए, लगातार प्रभाव को प्राप्त करने के लिए, हाँ, ये कैसे हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। We have just studied that it is due to the potential difference between 2 points that an electric current flows between them, है ना। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी बहता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, यानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर बहता है। यह तो आप जानते हैं खुद ही। द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस between the two ends of a conductor so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminal of a cell or a battery। तो जब तक कि किसी भी चालक में आवेशों का सतत प्रभाव के लिए, आवेशों का सतत प्रभाव को बहने के लिए, लगातार उसे बहने के लिए, उसके जो दो शीर्ष हैं उस दोनों शीर्ष को बैटरी के यानी धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से जोड़ना पड़ता है। यानी उसके जो दो टर्मिनल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों टर्मिनल से उसको जोड़ना पड़ता है। और जब तक जोड़ा रहता है तब तक उस चालक में धारा जो है लगातार रूप से चलती रहती है, यानी आवेश का प्रभाव चलता रहता है। ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इनसाइड द सेल और बैटरी, ए पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन इट्स टर्मिनल, and this potential difference drives the current in a circuit in which the cell or battery is connected। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी चालक को बैटरी के धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है तो उसमें एक विभव पैदा होता है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर आवेश का इस तरह से प्रभाव होने लगता है जब तक कि ये चालक आपका दोनों टर्मिनल से जुड़ा रहता है। तो बैटरी से जुड़ा हुआ रहे या सेल से जुड़ा हुआ रहे, आप समझ रहे हैं कि सेल और बैटरी में क्या फर्क है ना। तो सेल चूँकि ये सिंगुलर फॉर्म है और बैटरी आपका प्लूरल फॉर्म है। बैटरी इज द ग्रुप ऑफ द सेल्स। When a dry cell is connected to a torch bulb through copper connecting wires, then its potential difference causes the electric current to flow through the copper wires and the bulb, due to which the bulb lights up। आप जानते हैं कि टॉर्च का जो बल्ब है वो भी जलता है, लेकिन उससे अगर कोई वायर से बैटरी के धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है तभी वह बल्ब जलता है। और आप जानते हैं कि ज्यों ही बैटरी के धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से जब जोड़ा जाता है या सेल के धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है तो उसमें एक पोटेंशियल आ जाता है, यानी विभव आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होता है और ड्यू टू दिस रीजन चार्जेज स्टार्ट्स टू फ्लो in the circuit। Now please that the torch bulb is used in the circuit shown in figure 8 is actually a kind of conductor। अब आपको दिखाया गया है ये टॉर्च ये सेल है और ये देख रहे हैं बल्ब जल रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है थ्रू कॉपर वायर। थ्रू दिस कॉपर वायर charges electric current is flowing continuously and due to this reason bulb lights up। Now direction of electric current। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन के बारे में हम लोग चलेंगे अब कि इलेक्ट्रिक का जो करंट है उसकी जो दिशाएं होगी वह कैसे होगा, अब इसके बारे में जानेंगे।
When electricity was invented a long time back, it was known that there are two types of charges, positive charges and negative charges. But the electron had not been discovered at that time. So electric current was considered to be a flow of positive charges, and the direction of flow of positive charges was taken to the direction of electric current. तो जब तक कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था, बहुत ये पीछे की बात है, जब बिजली का ये इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ था, बहुत साल यानी बहुत वर्ष पहले, तो सिर्फ दो चार्ज ही जाना जाता था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लेकिन उस वक्त जो है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड, तो इलेक्ट्रिक करंट को माना जाता था कि टू बी ए फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का ही बहाव होता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश का ही बहाव को ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता था। एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस was taken to the direction of electric current, और इसका दिशा वही होता था, उधर ही होता था जिधर इलेक्ट्रिक करंट की दिशा होती थी। तो यानी इलेक्ट्रिक करंट की दिशा में ही पॉजिटिव चार्ज के बहने की दिशा होती थी। कनेक्ट हो जाइएगा। Thus the conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell to the negative terminal। तो इसलिए मैंने इसकी जो दिशाएं जो थी यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर विशेष कर माना जाता था, थ्रू द आउटर सर्किट, यानी आउटर सर्किट के माध्यम से। सो इन आवर सर्किट डायग्राम वी पुट द एरोज ऑन द कनेक्टिंग वायर्स पॉइंटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। इसलिए ये फिगर में दिखाया गया पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट हमारा बढ़ रहा है। The actual flow of electrons is however from negative terminal to positive terminal। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो बहाव है, वास्तव में जो बहाव है वह आपका ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल क्यों होता है। कोई भी सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल continuously which is opposite to the direction of the conventional current, जो कि यानी कन्वेंशनल करंट की दिशा के ठीक विपरीत होता है। यानी आप जान रहे हैं कि आवेश का जो चार्ज है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो भाव है वह नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। यही है फर्क। हाउ द करंट फ्लोज इन ए वायर। अब देखिए कि करंट जो है वायर में कैसे फ्लो करता है वो देखिए। वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल वायर व्हेन ए सेल और बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स। ए मेटल वायर हैज प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। अब आप जान रहे हैं कि मेटल वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वह इलेक्ट्रॉन का एक संगम बिंदु है, संगम स्थल है। दैट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल वायर। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ही विद्युत धारा है। तो when the metal wire has not been connected to a source of electricity like a cell or a battery, then the electrons present in it move at random in all the directions between the atoms of the metal wire as shown figure 9। अब कहा जाता है कि यदि मेटल वायर किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स से जुड़ा हुआ नहीं है, अर्थात कोई बैटरी से न जुड़ा हुआ है न सेल से जुड़ा हुआ है, उस अवस्था में मेटल वायर जो है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वह रैंडम पोजीशन में रहेगा और उसका डायरेक्शन जो होगा रैंडम यानी अनडिफिनिटली होगा। यानी उसकी जो डायरेक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ द मेटल वायर इस तरह से दिखाया गया है
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो when no cell और बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द मेटल वायर। इस दिशा में ये आप जो फिगर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो दिशा होगा एट रैंडम होगा इन द मेटल वायर when this metal wire is not connected with any electrical source, but in the case of when the metal wire is connected with any metal source, then the direction of electron flow will is seen in this figure 10. look at इस दिशा में होगी। So when a source of electricity is like a cell or battery is connected between the ends of the metal wire, then an electric force acts on the electrons present in the wire, since the electrons are negatively charged. इस प्रकार से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रॉन जो है यानी ऋणीय आवेश होते हैं, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव इन टू द पॉजिटिव, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो बहता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहता है। This flow of electrons constitute the electric circuit in the wire, और ये जो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव है यह इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब आ जाइए इलेक्ट्रिक सर्किट में, अब आ जाइए, हो गया।